میرا لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے رضا کاظمی اور اسرار حسین شاہ آپ کے سوالات لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے وراثت یا جائیداد کی تقسیم. مومنین کرام، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کا بہت ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جائیداد کی تقسیم میں بہت سارے گھریلو جھگڑے وغیرہ بھی آتے ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ محمد والے محمد میں جائیداد تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تھوڑے سے سوالات زیادہ ہے، اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی بھی ہو جائے تو آپ سے اپیل ہے کہ محسوس نہیں کرنا اور آخری دم تک ویڈیو کو دیکھنا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے ہم آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی رضا بیٹا شروع کریں. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آغا صاحب، سوال یہ آیا، پہلا سوال، کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق جائیداد تقسیم کر سکتا ہے؟ ہر زندہ شخص کو جو کہ صاحب جائیداد ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی زندگی میں اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی جائیداد کو تقسیم کر سکتا ہے. وہ چاہے تو اپنی ساری جائیداد وقف کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ وقف کرے، یعنی مسجد کو دے، امام بارگاہ کو دے، مدارس کو دے، یتیم خانے کو دے، اور بقیہ حصہ اپنی اولاد میں تقسیم کر دے. تو جب بھی وہ بندہ زندہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ سارا اس کے اختیار میں ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم صادق امام کے ماننے والے ہیں اور اس کے فقہ پہ عمل کرتے ہیں. وہ بھی عادل ہیں، اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی جائیداد تقسیم ہو تو اس میں عدل کا خیال رکھا جائے، اور جتنے ہی اس کے حقدار ہیں اگر حقدار تک اس کا حق پہنچایا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا، اور اس کا ثواب اسے اپنی آخرت میں بھی ملے گا. جی آغا صاحب، ایک بزرگ نے سوال کیا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، کیا میرا اسے اپنی جائیداد میں سے حصہ دینا ضروری ہے؟ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں، اور وہ شخص زندہ ہے، تو بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کریں، والدین کے حکم پر عمل کریں، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں. ہاں البتہ جہاں تک آپ کا سوال ہے، اگر وہ گالی گلوچ کرتا ہے، کیونکہ اپنی زندگی میں صاحب جائیداد کو یہ حق حاصل ہے، کسی کو دے یا نہ دے، اگر وہ اس بیٹے کو اپنی جائیداد نہیں دینا چاہتا تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اور ایسا کرنے سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. جی آغا صاحب، ہمارے علاقہ میں لوگ اپنی بچیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ لمحہ فکریہ آپ کے علاقے کا نہیں ہے، تقریباً ہر طرف ہے، اور یہ صرف اور صرف اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب جائیداد میں سے جس جس کا حصہ بنایا ہے، جس کی جائیداد ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی جائیداد کو ان حقداروں میں تقسیم کرے. اگر کوئی شخص اپنے بیٹوں کو تو جائیداد دے دیتا ہے لیکن بچیوں کو یا بہنوں کو نہیں دیتا، ہمارے علاقے میں بھی ایسا رواج ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ گناہگار ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ شریعت نے جیسے حق متعین کیا ہے اس کے مطابق اپنے بچوں اور بچیوں میں اپنی جائیداد کو تقسیم کریں، تاکہ آخرت میں ان سے سوال و جواب نہ ہو. جی جی آغا صاحب، کیا کوئی صاحب جائیداد اپنی زندگی میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے بعد میری جائیداد کو اس طرح تقسیم کیا جائے؟ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنے ہار سے تو جس طرح چاہے اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ ایسی وصیت نہ کرے. اگر وہ جائیداد چھوڑ کر مر گیا ہے تو جو بھی اس کے باقی وارث ہیں انہیں قانون کے مطابق ہی جائیداد میں سے حصہ ملے گا. جی آغا صاحب، ایک طالب علم کا سوال آیا کہ مرحوم کے مرنے کے بعد اپنی جائیداد میں کتنا حصہ بچ جاتا ہے؟
जब भी कोई शख्स जिंदा होता है तो वो पूरी जायदाद का वारिस होता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर वो अपनी पूरी जायदाद का वारिस नहीं रहता, बल्कि उसका तीसरे हिस्से का मालिक होता है। 2 हिस्से उसके लवाहकीन में तकसीम हो जाते हैं। यहाँ एक बात और गुजारिश मैं कर दूं कि अगर वो बंदा मर गया है तो तीसरे हिस्से के मुताबिक जो वो वसीयत करता है, लवाहकीन के लिए ज़रूरी है कि उस पर अमल पैरा हूँ। अगर वो अपने तीसरे हिस्से में से कहता है कि मेरे मरने के बाद इतना हिस्सा इमाम बारगाह को देना, मस्जिद को देना, मदारस को देना, यतीम खाने को देना, वक्फ करना, तो उस पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर तीसरे हिस्से से ज़्यादा वो वसीयत करता है तो उस पर लवाहकीन का अमल करना ज़रूरी नहीं है। जी जी अगर साहब, एक बच्चे ने सवाल किया है कि क्या वालिद साहब की तरफ से इमाम बारगाह या मस्जिद को वक्फ की गई ज़मीन पर उसके मरने के बाद औलाद का कोई हक होगा? जब कोई साहिब जायदाद अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वक्फ कर देता है तो उसकी औलाद का उस पर से हक ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर हमने भी इधर देखा है, बल्कि हमारे इलाके के ये एक बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। एक साहब ने 1 एकड़ ज़मीन इमाम बारगाह को दे दी। जब उस दुनिया फ़ानी से चला गया, अभी तमीर नहीं हुई थी, तो उनके बच्चों ने वहाँ पर अपनी दुकानें बनाना शुरू कर दी। तो वक्फ शुदा ज़मीन के बाद बच्चों का हक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो वक्फ की ज़मीन होती है। अगर उस पर कोई बंदे के मरने के बाद कोई कुछ अमल करता है, यानी जायदाद वगैरह पर अपनी वो दुकानें बनाता है या घर बनाता है, तो इस करना जायज़ नहीं है। अगर औलाद ऐसा करेगी तो फिर वो गुनहगार होगी। जी अगर साहब, एक दोस्त का सवाल आया है कि क्या कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद में से पैसे देकर अपने लिए नमाज पढ़ा सकता है? जिंदा शख्स के लिए यह जायज़ नहीं है कि वो अपनी जायदाद में से पैसे दे, जिसे हम अजारा कहते हैं, और उस पर अपनी कदा नमाज अपनी ज़िंदगी में किसी से पढ़ाए या अपनी ज़िंदगी में अपना कज़ा रोज़ा किसी से रखवाए। अलबत्ता वो ये कर सकता है कि किसी आलिम, फाजिल या दीनी तालिब इल्म को जिस पर उसका एतमाद हो अपनी ज़िंदगी में पैसे दे सकता है और वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी इतनी कदा नमाज़ें अदा करना, मेरे इतने कदा रोज़े रखना। और ज़िंदगी में एक चीज़ पर वो अमल करा सकता है। अगर वो ज़ईफ़ हो गया है, सीयत उसको इजाज़त नहीं देती, लेकिन उस पर हज वाजिब है, तो वो अपनी नियाबत में खर्चा करके किसी से अपनी हज करवा सकता है। जी अगर साहब, एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि अगर किसी का बेटा काफिर और कातिल हो गया है तो क्या वो बेटा अपने बाप की जायदाद का वारिस बन पाएगा? बाप मुसलमान और बेटा काफिर आए तो शरीयत में काफिर बिल्कुल बाप की जायदाद का वारिस नहीं है। इसी तरह अगर बेटा मुसलमान आए और वालिद काफिर आए तो वालिद भी काफिर वालिद बेटे की जायदाद में से हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरा सवाल है, क्या कातिल बाप की विरासत का हकदार हो सकता है? आमतौर पर हम मुआशरे में देखते हैं इसी जायदाद के लिए बेटा वालिद को कत्ल कर देता है ताकि मैं जायदाद पर काबिज हो जाऊं। लेकिन फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में जिस शख्स ने अपने वालिद को कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद उसकी जायदाद पर उसका कोई हक नहीं है और कत्ल का गुनाह अपनी तरफ से है और जायदाद पर काबिज होने का भी उसको गुनाह होगा। जी अगर साहब, अगला सवाल ये है कि क्या जना से पैदा होने वाली औलाद भी जायदाद की वारिस बन सकती है? फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में जना बहुत बड़ा जुर्म अज़ीम है, जुल्म अज़ीम है, और जना से जो औलाद पैदा होती है फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में उसका कोई हिस्सा या हक नहीं है। जी और इसी तरह अगर साहब, क्या आग की जाने वाली औलाद वो जायदाद की वारिस बन पाएगी? हाँ, अलबत्ता जो आग की हुई औलाद है वो नफरमान तो है, वालिद को गुस्सा भी है, माँ को भी गुस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आग तो हो गए हैं। लेकिन फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में वालिद की विरासत में उनका हक ऐसे ही होगा जैसे फर्मा बरदार औलाद का हक है। जी अगर साहब, आज की हमारी नशिस्त का आखिरी सवाल है। एक भाई के फ़ोन कॉल आई है कि एक शख्स फौत हो गया है, उसके वुरसा में 3 बीवियां हैं और एक बीवी में से एक बेटी है। सवाल ये है कि 3 बीवियों और एक बेटी में 1 लाख रुपया कैसे तकसीम किया जाए फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक? ये एक मैथमेटिकली किस्म का सवाल है। मोटी बात याद रखें, फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में अगर किसी शख्स की औलाद है
औलाद होने की सूरत में उसकी जितने भी मलियत पैसे रुपए वगैरह हैं उसमें से उसकी बीवी का 8वां हिस्सा होगा जी और बाकी मालियत उसके वर्सा में तकसीम होगी। यहाँ पर 1 लाख रुपए का है तो थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ और इस कैलकुलेशन को हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा देते हैं। हो सकता है समझने समझाने में किसी को समझ ना आए तो वो डिस्क्रिप्शन में से देख लेंगे और मैथमेटिकली उनको समझ आ जाएगी। मरहूम ने अगर 1 लाख रुपया छोड़ा है तो उसकी बीवियों का हिस्सा बनता है 8वां। गोया 1 लाख को हम 8 पे तकसीम करेंगे तो उसका जवाब बनेगा 12,500। अगर उस मरहूम की एक ही बीवी होती तो 12,500 उस बीवी को मिलता और बाकी हिस्सा जो भी बचता उसकी बेटी को मिलता। लेकिन क्योंकि 3 बीवियां हैं तो 12,500 को हम फिर 3 पर तकसीम करेंगे, वो तकरीबन बनेगा 4,166 रुपया। गोया 1 लाख में से हर बीवी को 4,166 रुपया मिलेगा और बाकी जो 87,500 रुपया बच जाएगा वो जिस बीवी में से भी वो बेटी है उसको 87,500 रुपया मिल जाएगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन, रज़ा मुस्वी को भी याद रखें। और आखिर में एक हमेशा की तरह गुजारिश करता हूँ, अगर हमारी ये अदना सी कोशिश आपके म्यार पे पूरा उतर रही है, आपके मसाइल का जवाब हम सही अंदाज में दे रहे हैं, तो इसे सदका जारिया समझकर हमारी ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारे लिए ये आखरत का सबब बन सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। लदू वाली अल वली इश्क फातिमा